Yeah, good morning everyone. So till now we have discussed about the types of sets and complement of a set, difference of a set and lot many things related to the set theory, followed by the basic understanding of the Venn diagram, and then we did consider about the De Morgan's law as well. Today we are going to start with the practical word problems particularly, which are very important. But before I go for the word problems which are based on the union and intersection of two sets, here is a question for you. In fact, number of questions. What is this figure represent? Shaded region clear हो रहा है. Yes, B sir. is highlighted, so that is region. That's B. simply representing B. Now will be your turn. Think about this in terms The of A union. union C. A A union union C. The level of difficulty हल्का हल्का सेम यार, ज्यादा भी जाएगा. What is this? A intersection B. The A A intersection intersection B B. intersection C. Yeah. B minus A. No. sir A dash Yes, it is a complement. ठीक है, वो डैश दिखाई नहीं देता तो समटाइम ऑथर्स राइट ए के ऊपर सी लिख देते हैं, तो दैट्स ए कॉम्प्लीमेंट. ए को छोड़कर बाकी सब शेडेड है. A union B. The A union B. The A union B. Yes, गुड. B union B C union The C. B union C. B union C. Yes, so these are quite simpler one. A dash. sir A A complement dash. Yes, dash. one hardly matter three sets except A everything is there, तो A complement. अब यहाँ The A intersection B. ध्यान से देखो, ये तीनों हैं शेडिंग के अंदर. The B intersection C. A intersection sir B A intersection C. intersection B Union C. B intersection B. चेक दिस आउट. ए यूनियन सी करा. मैं कलर शेडिंग इसमें 1 मिनट ले लेता हूं. तो ए यूनियन सी देखिए, ए और यूनियन सी, ये पूरा रीजन आ गया. और अब इसके बाद हम देख लेते हैं इंटरसेक्शन विद बी. बी के साथ, तो बी का तो इतना ही पोर्शन आएगा इंटरसेक्शन में, और दिस इज व्हाट आवर हाइलाइटेड रीजन. So this represent this C union A intersection लिया ultimately with B. I hope this visualization is clear. तो अब थोड़ा सा लॉजिकली चीजों की बात करेंगे. ये और इजी है वैसे. दिस वन, The A A intersection B intersection B intersection C. intersection C. यस, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तीनों में कॉमन. C complement. C complement. कॉम्प्लीमेंट. A complement. Only B. दिस इज नॉट ए कॉम्प्लीमेंट. B minus A. B minus minus A. दिस इज B माइनस A. तो चेक करिए, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज B में से माइनस किया है, एंड दैट इज ऑल्सो B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट. So this is equal to this. In fact, this will be considered as one of the very important formula. Very similar to this one. Sir, A union B intersection C. सोचिए फिर ध्यान से. The B union C intersection A. The C union B intersection A. Yes. ठीक है. अब एक अगर ये मुझे क्लियर हो गया है, आई कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस. So what type of question you expect in examination? Definitely one way. Diagram is given. What does this represent? And vice versa. Represent this using Venn diagram.
तो इसे देखकर आपको ये वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए. तो बोथ द वेज द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. Now, given any three sets say A, B and C, we have the following rules. फार्मूला हैं जो आपको डायरेक्टली याद करने हैं. N of A यूनियन B क्या होता है? Na plus NB minus N of A intersection B. Initially, you learn this rule. I will explain this using a Venn diagram as well. And this is obvious if A and B are, their intersection is phi, means disjoint sets. तब ये वाली टर्म जो है जीरो हो जाएगी and the formula will be simply this. N of A minus B plus N of A intersection B होता है N of A. Right? Learn this as a formula और आप अपने आप इसे वेरीफाई करेंगे इन होमवर्क यूजिंग वेन डायग्राम. सेम वे फोर्थ वन बिल्कुल ऊपर जैसा ही है. एंड हियर कम्स द फिफ्थ वन. थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है. N of A यूनियन B यूनियन C. बेसिकली फर्स्ट फार्मूला का एक्सटेंशन है टू थ्री सेट्स Na प्लस NB प्लस NC. फिर हम थोड़ा ऐसे याद करते हैं माइनस N of A इंटरसेक्शन B. माइनस कॉमन लिया हुआ है इसलिए ये एक्चुअल में क्या आया माइनस N of B इंटरसेक्शन C माइनस N of A इंटरसेक्शन C और लास्ट में प्लस हो जाता है N of A intersection B intersection C. So the idea is one way I can use this formula directly, or otherwise I will give you the method, in fact using Venn diagram simple visualization approach, and using that I can even avoid using this formula. So I would recommend and prefer in our classroom teaching that we should go for the word problem using the Venn diagrams only. But otherwise students sometimes they prefer to go with the formula approach, which is actually typical. So I would discourage using the formulas in general, because for every part, every question, you will have to use number or different formulas. So I will avoid that learning of number of formulas. जितना कम से कम में काम चल जाएगा हम उतनी ही बात करेंगे. और साथ में एक और चीज आप लिख लीजिए फार्मूला में, यहाँ जो लिखना रह गया है, that is say 6-1 N of A complement intersection B. This is N of B minus A. और इसी सिचुएशन को हम अगर दूसरा केस ले, मतलब A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा यहाँ पर N ऑफ this is N of B minus N of A intersection B, and this will become N of A minus N of A intersection B. और अगर आप ध्यान से नोट करें तो यहाँ पर कुछ कुछ इसी तरह की टर्म्स को यूज करने की कोशिश किया था ऊपर जो फार्मूला हमने लिया, बट आई वुड रिकमेंड लर्न इन द फॉलोइंग फॉर्म 6th and 7th की तरह. The same type of formulas will again occur in probability 11th में भी और 12th में भी. Consider this diagram, और अब आप इस वेन डायग्राम को देखकर चेक कर सकते हैं. जैसे मैं फर्स्ट फार्मूला की बात करूं तो क्विक विजुअलाइजेशन इसका, N of A यूनियन B. N of A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B ये होगा पूरा वैसे. और अब अगर इसी सिचुएशन को हम हाईलाइट करें RHS के थ्रू, क्या मतलब? N of A. N of A का मतलब ये पूरा हो गया, प्लस में N of B. N of B का मतलब ये पूरा आ गया,
बट आप चेक करिए ये करते हुए हुआ क्या, सेंटर में जो ये पोर्शन था कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी, इट इज काउंटेड ट्वाइस, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, इसीलिए एक तरफ से मुझे एक वैल्यू वो सबट्रैक्ट करनी रही, एंड हेंस वी हैव दिस फॉर्मूला. Please make a note of these formulas. Again, a simple visualization for you. I'll share the PDF. You can check it out in your homework. Color concept से idea लग जाएगा क्या represent करना चाहते हैं. And we now begin with the word problems based on these formulas. So to begin with, ये question देखिए. If A and B are two sets, n of A 27 है, n of B given है, n of A union B given है. Find n of A intersection B. So recall the first formula and the most important formula. ये मैं आपको बता ही चुका हूं. आउट ऑफ 4 आप चेक करिए, आपको 3 वैल्यूज गिवन थी. A n of A intersection B. Check out, wait for a second. Yes. So what's the answer? 12. Yes. आपने अरेंज किया, n of A intersection B आ गया, this and minus this, your required answer. So this is a very basic one marker to begin with. Check this out. ये भी एक simple question लिया है. Sir, 12. ओके, चलो चेक कर लेते हैं. In a school there are 20 teachers who teach maths और physics. तो आप चेक करिए, अगर मैंने M वाले ले लिए मैथ्स पढ़ाने वाले, P वाले फिजिक्स वाले, तो आपको या मैथ्स या फिजिक्स 20 गिवन है. ऑफ दीज 12 टीच मैथ्स, सिर्फ मैथ्स वाला आपको ये कहा है, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स. बोथ का मतलब इंटरसेक्शन हो गया. हाउ मेनी टीच फिजिक्स? तो वी नीड जस्ट टू फाइंड फिजिक्स वाले टोटल बताना है. अगेन अप्लाई दी सिंपल फॉर्मूला. तो n ऑफ m यूनियन p क्या बन जाएगा फॉर्मूला? This is the formula, and let me substitute the values over here. ओ एक मिनट, कहीं कोई गलती हुई है. ये इंटरसेक्शन आपको 4 गिवन था, वो गलत जगह मैंने किया. निकालना है. Yes, that we need to find actually. तो n of p तो हमें फाइंड आउट करना था, और ये आ गया इसकी जगह यहाँ पर 4. सो n of p कितना आ गया? 20 plus 4 and then minus 12, your required answer.
You may try out and understanding these type of questions using the Venn diagram also. ठीक है, तो मैं इसी क्वेश्चन को विजुलाइज करता हूँ यूजिंग वेन डायग्राम, और वे इसको सोचने का देखो क्या था. नाउ अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, क्योंकि अगर आपके पास दो हैं, सिर्फ मान लो m और p है, दो तरह की चीजें हैं, देन ऑफ कोर्स फार्मूला इज इजियर टू अप्लाई. बट अगर मैं a b c तीन सेट्स की बात करूंगा, देन वी वुड प्रेफर टू गो विद वेन डायग्राम अप्रोच. तो ये m और p लिख दिया. अब देखो m यूनियन p 20 कहा है, m कितना है 12 है, तो मैं एक यहाँ भी लिख देता हूँ ये 12 है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन 4 है. ये 4 हो गया इंटरसेक्शन में, ऑब्वियसली फिर ये कितना आ गया 8 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 12 था, राइट. और टोटल यूनियन कितना है 20, इसका मतलब इन तीनों का सम 20 होना चाहिए, तो ये भी 8 आ जाएगा. और फाइनली मुझे n ऑफ p चाहिए, तो p के सर्कल में कितने आए हैं 12. योर रिक्वायर्ड आंसर. ये क्लियर हुआ? सर हमें वेन डायग्राम डायरेक्ट लिखना होता है, मतलब कि ऐसे फिगर बना के? रिपीट योर क्वेश्चन. सर क्या कहते हैं, हमें डायरेक्ट यही करना था, मतलब कुछ शो नहीं करना होता फिगर बनाने के बाद? सी दिस इज अ 1 मार्कर, नथिंग इज टू बी शोन. डायरेक्ट आंसर आप बिल्कुल वेन डायग्राम से कर सकते हो. बट इफ इट इज से 2 मार्कर 3 मार्कर, देन ऑफ कोर्स कुछ लिखना है, वो मैं आपको भी बताता हूँ. Excuse me, sir. यस. Sir, in the last question, shouldn't be the answer 8. बाय. सर हमें सिर्फ फिजिक्स के बताने, तो फिजिक्स तो वेन डायग्राम से बेटी है ना. वेयर इज इट रिटन के हमें सिर्फ फिजिक्स बताने हैं. हाउ मेनी टीच फिजिक्स कहा है. आप जो कह रहे हो वो उस क्वेश्चन में बीच में एक वर्ड अगर लिखा होता, हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स का आंसर 8 होगा. बट हाउ मेनी टीच फिजिक्स, तो ये नहीं कहा ये फिजिक्स वाला, तो ये कंप्लीट सर्कल हुआ ना भाई. वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग. बट फिजिक्स तो पढ़ा रहे हैं ना ये वाले 4 लोग भी, तो इसलिए इट इज 12 ओनली. ओके सर. ओनली वर्ड अगर आ जाता ना क्वेश्चन में, तब आंसर जो आप कह रहे हैं तब वो 8 होगा. वी हैव सच क्वेश्चंस. ओके सर. In a class of okay, this is a very simple question again. हम yes, in a class of 35 students, 24 like cricket, 16 like football, and each student like to play at least one of the 2 games. How many students like to play both? So I think that is very simple. आपको ये निकालना है. आपको n ऑफ इन दोनों का यूनियन गिवन है, 5. क्रिकेट वाले अलग से बताया एंड फुटबॉल वाले अलग से बताए हैं. यूज द फार्मूला डायरेक्टली. अब अगर मान लीजिए मुझे इसे वेन फार्मूला से, तो आप इसे इजीली कर लेंगे. नाउ से मुझे इसे वेन डायग्राम से सोचना है इस सिचुएशन को. एक बार देखिए जरा ध्यान से. सो दिस इज से सी. क्रिकेट वाले कितने लिखे थे 24, और फुटबॉल वाले हैं 16, और कोई ना कोई गेम तो स्टूडेंट खेल ही रहा है, तो टोटल जो है वो कितने हैं 35. अप्लाई अ सिंपल लॉजिक. यहां मैंने x मान लिया, मुझे नहीं पता ये कितने हैं, जो निकालना है वो x हो गया. सो व्हाट विल हैपन, यहां कितना आएगा, इजंट इट 24 माइनस x? कैन एनीवन टेल मी यहां कितना आएगा? ये Yes, बात. sir. 16 16 minus 16 x. minus x. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों का यूनियन अगर आप ले लेते हैं, मतलब ये,
ये कितना गिवन है 35। सॉल्व फॉर एक्स, वही आपका आंसर होगा। आंसर के बाद अपने आप को म्यूट कर लिया करो थोड़ा ना बीच में। यस, टेक दिस आउट। अब एक छोटा सा लॉजिक है जो लास्ट स्टेप में यूज करना है। आई एम वेटिंग, ट्राई ईदर थिंकिंग यूजिंग वेन डायग्राम और अदरवाइज, वो आपकी चॉइस अभी मैंने दिया है। सर 225। चेक करना पड़ेगा मुझे भी सॉल्व करके पूरा प्रॉपर। कह रहे इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, टोटल स्टूडेंट्स मुझे बताए हैं, माने एन ऑफ यू 400 स्टूडेंट्स हैं। 100 listed taking apple juice, so apple and orange, apple वाले कितने हैं 100, 150 taking orange and 75 taking both। तो ये लो, ये 75 आ गया बीच में, कॉमन दिया है। इतना करने के बाद ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है, अब आप क्विकली बता सकते हैं ये हो गया 25, 100 में से ये 75 गए, और ये कितना आ गया यहाँ पर 150 में से ये 75 हटा दिए, 75 आ जाएगा। सो दैट आपके पास, अब चेक करिए व्हाट इज द आंसर। आपसे पूछा क्या है, नीदर। तो नीदर का मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ लेने वाले जो हैं वो तो कितने हो गए 25 प्लस 75 प्लस 75 विच इज 175। तो जो बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं का मतलब क्या हो गया है, वो सिंपली क्या हो गया, टोटल एन ऑफ यू में से आप ये वाले पर्सन जो कुछ ना कुछ ले रहे हैं वो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, विच इज 400 टोटल लोग थे और 175 कुछ ना कुछ ले रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड, यस आंसर अभी किसी ने पहले बता ही दिया था, दैट इज करेक्ट 225। So here I am using the Venn diagram and a formula, basic understanding of the formula all together. अगर मैं इसे डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला से देखना चाहूं तब ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है। मैं आपको स्टार्टिंग हिंट दे देता हूं, चेक करिए। और टू फाइंड मुझे क्या करना है, सबसे पहली बात in terms of formula, neither taking apple juice nor orange, apple नहीं ले रहे and orange नहीं ले रहे। This is the most important thing initially to understand कि ये आपको निकालना है। Sir, we can say it also A union B intersection. Using डी मॉर्गन्स लॉ, चेक करिए लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं डी मॉर्गन्स लॉ की। तो डी मॉर्गन्स ये इसके इक्वल होता है, याद दिलवा देता हूं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने RHS to LHS ये लिख दिया, और एन ऑफ ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एन ऑफ यू टोटल लोग जितने हैं माइनस एन ऑफ ए यूनियन ओ हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हियर, यू कैन मैच इट आउट। और फिर आपने वेन डायग्राम सोचा या डायरेक्ट फॉर्मूलाज को यू कैन
find out these values. n of u तो मुझे डायरेक्ट गिवन था 400 और व्हाट इज n of a यूनियन o का फॉर्मूला n of a plus n of b n of o minus n of a intersection o and accordingly you can check it out. आपको सारी वैल्यूज गिवन थी. n of a कितना था 100, n of o ऑरेंज वाले 150 और 75 दोनों ले रहे थे. तो आपने इसे सॉल्व कर दिया एंड सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. देख लो ये वही आ गया ना, सेम आंसर 175. ऑफ कोर्स इट हैज टू बी द सेम. सो चॉइस इज योर्स. अगर आप सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो हम ये अप्रोच कर रहे हैं. बट माइंडेड वंस अगेन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं. पहला स्टेप ये चीज कि ये इसके इक्वल है और फिर ये इसके इक्वल लिखना है, यहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आगे गलत हो जाएगा. इसीलिए I would generally recommend and suggest using Venn diagrams altogether. Please make a note of it. Important चीज है ये. Any doubt to anyone? Yes. Check out this another logical question. The 9 सर 9 and and minimum 6. मैम 9 and 6. हाँ 9 and 6. देखिए क्या कहा गया है. A and B are two sets containing 3 and 6 elements. What is the maximum number of element in A union B? तो फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम आपको चाहिए A यूनियन B का. n of A is 3, n of B is 6. सो कॉमन सेंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं. मैक्सिमम कब आएगा? when both are disjoint. इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों का यूनियन तो ये 3 और प्लस 6 एलिमेंट्स हो जाएगा आंसर. बट सेकंड पार्ट में जब मिनिमम पूछा है तो मिनिमम का लॉजिक अब आप सोचिए जरा ध्यान से कम कब पॉसिबल है. ये मान लो A है और A जो है वो B के अंदर है. वो यस गुड, वो सबसेट हो गया B का. तो ये तीनों एलिमेंट जो A के हैं वो ऑलरेडी B में आ गए हैं. दैट मीन्स द रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर वुड बी 6. अब ये कैसे मैंने डिसजॉइंट सेट सोचे और कैसे ये सोचे हैं, दैट यू नीड टू थिंक. और साथ में थिंक अबाउट दिस ऑल्सो कि ये वाला डायग्राम मैं यहाँ क्यों नहीं सोचूंगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैक्सिमम एंड मिनिमम की बात हुई है. तो मैक्सिमम आएगा इस केस में, मिनिमम आएगा इस केस में. दिस वॉन्ट गिव अस एनी ऑफ देम. Based on this, you have a very simple NCERT exercise 1.6. फर्स्ट 2 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड है. यहाँ वेन डायग्राम की रिक्वायरमेंट से आपको नहीं है. Check out these questions. Here again, use Venn diagram or the formula.
So again, both the questions in your homework are very simple and straightforward questions. Check out the following questions. 5th and 6th. Quickly 6th बताइए सॉल्व करके. I am waiting. 6th question. And please, in case if you have already solved these questions, तो उनमें से आंसर ढूंढने या देखने मत लग जाना. फिर से या दोबारा से प्रॉपर सोचिए और सॉल्व कीजिए. सर 19. 19 Okay. So in a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each one like at least one of them. How many like both? So everything is given. तो both आइडिया लग जाए तो आंसर क्या होगा? इन दोनों को ऐड किया और 70 माइनस. Write down the formula. You will have your required answer. सी ये बेसिक क्वेश्चंस हैं. इनमें अगर किसी को डाउट है तो प्लीज डू क्लैरिफाई, क्योंकि इसके बाद अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे अबाउट 3 सेट्स. ये एक्सरसाइज में तो ओनली 2 सेट्स आर इन्वॉल्व. चेक दिस आउट. 7th 8th in your homework, very simple question. 7th क्वेश्चन एक बार करके बताइए. सेवंथ. So 35. चलो अभी चेक कर लेते हैं. आई थिंक 2 पार्ट्स है ना डिफरेंट. इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, टोटल पर्सन्स हैं. फर्स्ट पार्ट 25, सेकंड पार्ट 35. अच्छा चलो. 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस. बोथ का मतलब इंटरसेक्शन आ गया. हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली. सो नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट. आपसे जब टेनिस ओनली पूछा है तो सिर्फ आपको टेनिस वाले बताने हैं, राइट? तो लेट मी प्रेफर वेन डायग्राम. दिस इज क्रिकेट, दिस इज टेनिस. क्रिकेट के हैं 40 और कॉमन दिए हैं 10. ये हाईलाइट कर लिया इसे. वंस आई हैव डन दिस, एन ऑफ सी 40 था ना, तो ये क्लियरली 30 आ जाएगा. और टोटल पर्सन 65 है, तो यहां कितना आएगा? यहां तक 40 हो चुका है और टोटल पर्सन 65 25. तो सिंगल स्टेप में आप ये अगर वेन डायग्राम बना लेते हैं. नाउ लुक एट द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड. फर्स्ट पार्ट क्या था? हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली. तो टेनिस ओनली ऑफ कोर्स 25 हो गया. हाउ मेनी लाइक टेनिस? 35. इसमें ये 10 भी ऐड हो जाएंगे. तो लास्ट अभी किसी स्टूडेंट ने कोई पूछा था ना क्वेश्चन, तो वो इसी में इंक्लूड हो गया है. ओनली वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ? सर क्रिकेट तो सर 40 खेलते थे ना, तो सर वहाँ पे 30. सी अगर क्रिकेट में कहते ओनली क्रिकेट, वो कितना होता? ओनली क्रिकेट
यस, ओनली क्रिकेट इज 30, बट क्रिकेट कहते तब 40 है, वो गिवन ही है हमें। तो सर वहाँ ऊपर तो लिखा हुआ है कि ओनली 40 लाइक्स क्रिकेट। कहाँ पर कह रहे हो? सर क्वेश्चन में सर। हाँ, क्वेश्चन में For- हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो आप चेक करो आपको क्या कहा है। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ये आपको निकालना है ना फर्स्ट पार्ट में। यस सर। तो ये चीज हमने क्या सीखा था? अगर फॉर्मूले की बात करूं तो व्हाट इज एन ऑफ ए माइनस बी? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। तो यस अगर सर। ये यहाँ लगाऊं तो ये क्या लिखा जाएगा? एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। यस सर। तो एन ऑफ टी कितना आ गया है? 35। एन ऑफ टी ये तो वेन डायग्राम से देखा। यस सर। एंड माइनस व्हाट इज एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी? 10। तो अगर आप फॉर्मूला से भी देखेंगे और अदरवाइज आंसर सेम ही आएगा। नहीं सर, ये तो क्लियर है। वहाँ पे सर आपने 30 में लिखा सर वेन डायग्राम में। 40 क्रिकेट लाइक कर रहे थे, यस सर। 10 थे क्रिकेट एंड टेनिस दोनों में। यस सर। तो अगर 40 क्रिकेट में थे, व्हाट डज दैट मीन? ये जो सर्कल है ये क्रिकेट का है पूरा। यस सर। ये टोटल कितना है? 40। 40 ओके सर। 40 आगे सही लगा। 10 थे आपके जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? कॉमन, वो ये था। तो ये माइनस कर दूंगा जैसे ही, आई विल गेट 30 ओनली। यस सर। थैंक यू सर। ओके, यस, चेक दिस आउट। इस तरह का क्वेश्चन कर चुका हूं, टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी। अगर फॉर्मूला से सोचें तो नीदर टी नॉर कॉफी, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा यूजिंग सर 325। डी मॉर्गन्स लॉ, और फिर ये होता है इसके इक्वल। तो वन वे डायरेक्ट फार्मूला, otherwise Venn diagram. So both of the questions you can easily do it in your homework. चेक करिए, अब ये क्वेश्चन मिसलेनियस के हैं क्योंकि सीधा आप पीछे क्वेश्चन नंबर 8 तक था ना, यहाँ 8 है, और अब जो मैंने लिया है ये मिसलेनियस के हैं एनसीईआरटी। तो मैं मिक्स्ड वे में कंसेप्ट के हिसाब से चलता हूँ, नॉट एक्सरसाइज वाइज। तो मिसलेनियस के क्वेश्चन भी अकॉर्डिंगली मैं पिक कर रहा हूँ। यहाँ से अब जो हम बात स्टार्ट करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली इस तरह का आप 3 मार्क का सिचुएशन एक्सपेक्ट करते हैं, वेयर इन 3 सेट्स आर इन्वॉल्व। रीड द लैंग्वेज केयरफुली। In a survey of 60 people, it was found that 25 read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, और साथ में 9 read both H and I, 11 both H and T, 8 both T and I, and 3 read all the 3 newspapers. There is a reason of highlighting this separately क्योंकि this is going to play a very very important role. तो पूरा क्वेश्चन जब आपने पढ़ा और जब मुझे कॉमन बता दिया कि 3 read all the 3 newspapers, so check it out हम कैसे स्टार्ट करेंगे।
अब यहां मैं फॉर्मूला में नहीं जाऊंगा, दे आर मेकिंग इट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. जस्ट दिस टोटल पर्सन 60, और अब आपको 3 न्यूज़पेपर की बात करी है. सो ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस. 3 म्यूचुअल इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. 25 H में है, तो ये H है, और इसमें ये लिख लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए 25 छोटा सा यहाँ. फिर 26 किस में जा रहे हैं, T में. ये लो 26 आ गया. और नेक्स्ट है I विच इज 26 अगेन. यहां तक हो चुका है, क्लियर है. अब 3 read all the 3 newspapers. 3 यहां आ जाएगा, राइट. और फिर अब दोबारा, अब यहां से फिर से पढ़ना शुरू करो. 26 रीड न्यूज़पेपर. अच्छा, ये मैं इसका यूज कर चुका हूं, ये अब मुझे यूज करना है. कंसिडर दिस सिचुएशन जो मैंने एनसर्कल किया है. 9 रीड H एंड I. H एंड I ध्यान से देखना क्या बनेगा एक्चुअल में. H ये पूरा और I, ये तो हुआ इनका यूनियन. बट मुझे क्या कहा है, बोथ H एंड I. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जब मैं ध्यान से देखूं, तो कैन यू ऑल एबल टू विजुअलाइज कि इनका इंटरसेक्शन ये आ रहा है. यस सर. और इसमें टोटल आपको कितने लोग बताए गए थे, 9. H एंड I में, H एंड I के इंटरसेक्शन में मुझे 9 बताए हैं. ये टोटल अगर 9 है, ऑलरेडी 3 ऊपर आ चुके हैं. व्हाट डज दैट मीन, 6 रिमेन. रिमेनिंग हो गए आपके, ओ सॉरी, रिमेनिंग हो गए 6. यस सर. यस. रिमेनिंग यहां 6 आ गए. सिमिलरली नेक्स्ट मैं फोकस कर रहा हूं 11 रीड H एंड T. H एंड T, ये इंटरसेक्शन ये वाला आएगा ग्रीन हाईलाइटेड, वो 11 है. इसका मतलब यहां कितना आ गया, 3 तो यहां आ चुके हैं, ये 8 आ जाएगा. यस सर. और फाइनली 8 रीड T एंड I. T एंड I, इन दोनों सर्कल में अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉमन था, और इसमें क्या बताया है, 8. तो ये कितना आ गया, 5. 5. राइट. अब जब हमने ये लिख लिया है ना, इसके बाद तो आप चेक करिए सिचुएशन बहुत इजी हो चुकी है. रीजन, लुक केयरफुली, ओनली फोकस ऑन H. ये इस सर्कल पे फोकस करो, H वाले. ये आपको टोटल 25 कहा गया है H के अंदर, ये 25 है. इसका मतलब ये जो भी अननोन है, प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8, ये मिलाकर कितना है, 25. आई होप इट इज क्लियर. इस सर्कल के सारे एलिमेंट्स का सम तो 25 है, और दिस गिव्स मी द वैल्यू ऑफ एक्स. कितना आ गया, 8. 8. Similarly, if I call this as a y and z, तो 8 plus 3 plus 5 plus y, what is 10. this sum? ये 26 है. t का सम ले लिया था मैंने, और y आ गया 10. सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं z प्लस
I वाला ले रहा हूं एंड दिस Z इज, equal to 12. और सॉल्व करा 9, 14, 12 आ गया, राइट। वंस आई हैव दीज वैल्यूज विद मी, चलो मैं यहां लिख ही लेता हूं कि ये कितना आ गई हैं। सो x आ गया था 8, y is 10 and z is 12। नाउ चेक आउट दैट सर्कल के अंदर के आपके सारे जितने भी ये था, ये फिल हो चुका है, ये फिल हो गया, ये फिल है, एवरी वैल्यू इज विद मी, राइट। नाउ यू चेक आउट द क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा गया। जो भी पार्ट्स पूछे हैं, n नंबर ऑफ पार्ट्स may be there, you can answer all of them easily। check out first part, number of people who read at least one of the newspaper। क्या हो जाएगा? at least one of the newspaper का मतलब कुछ H ना कुछ तो union पढ़ ही P रहे हैं। union I। यस, इन सभी का यूनियन, कि कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे हैं, एंड दैट इज, ये मैं नंबर यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं, जितने भी नंबर लिखे गए हैं 8, 8, 10, 6, 3, 5 एंड 12, एड देम टुगेदर, यू विल गेट जो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे हैं। What about second part? People who read exactly one newspaper। Exactly मतलब सर डोंट यू थिंक सो, जो सिर्फ एक एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो X plus Y plus Z। x plus y plus z हो गया आंसर। थर्ड पार्ट आई एम एडिंग फ्रॉम माय ओन साइड, पीपल रीडिंग एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर्स। 8 plus 6 plus 5। चेक करिए, जब हम बात करेंगे एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या आ जाएगा? ये और ये। इमेजिन यूजिंग द वेन डायग्राम, ये हैं जो एग्जैक्टली दो में इन्वॉल्व हुए हैं, सो दैट विल बी 8 plus 6 plus 5 योर रिक्वायर्ड आंसर। और लास्ट फोर्थ पार्ट ऐड कर रहा हूं, एंड देन आई विल एंड द क्लास, रीडिंग नन ऑफ द न्यूज़पेपर। 8। 8, 8. चेक इट आउट, ये वैल्यू 52 आई थी आपकी। Yes sir। टोटल पीपल कितने थे सर्वे में? 60। 50. 60 में से हमने देखा 52 जो हैं वो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे हैं, तो ऑफ कोर्स 8 आर दोज हु आर रीडिंग नन। आई होप दिस इज क्लियर। क्लास, अब एक चीज मुझे बताओ, जैसे अब हमारे 2 कंटिन्यू पीरियड्स हैं, तो वन वे व्हाट आई कैन डू कि नेक्स्ट जो हमारे 40 मिनट हैं, आई विल रिड्यूस दैट टू 30 मिनट्स, और हम एक ही गो में क्लास को कंप्लीट कर लें, क्योंकि ब्रेक देना 10 मिनट, फिर आना जाना उतना टाइम होता है। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर ओके विद दिस? उससे क्या होगा, ये ब्रेक का टाइम खत्म, और जो मैं नेक्स्ट 40 मिनट पढ़ाता हूँ आई विल मेक इट 30 मिनट, तो थोड़ा कम भी हो जाएगा। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर ओके विद दिस? वो चैट बॉक्स में यस लिख दो, नहीं तो आई विल गिव अ ब्रेक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ओके 13, 14 आए हैं, ऑलमोस्ट 50% का ही इस तरह से। ओके 16 हो गए, ठीक है। सो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद दिस कंसेप्ट ओनली, एंड आई विल एंड द क्लास 10-15 मिनट्स बिफोर, डू नॉट वरी। एक गो में ना अच्छे से सारा चीज हमारा फिर हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने वैसे सर्कल यहाँ रखा हुआ था ड्रॉ करके ऑलरेडी, टू मेक द क्वेश्चन इजियर टू अंडरस्टैंड। एनीवे,
Now it is your turn. I am waiting. देखिए कैसे होगा ये. In a survey, it was found 21 people like product A. तो A total A के 21 है. In fact, what you can do, ये बाहर बनाओ to avoid any confusion. Right, ये B and say this is C. A में 21 है, B के 26 हैं and 29 like product C. फिर 14 like A and B, 12 like C and A, 14 like B and C, 8 liked all the three products. So this is very important initially to consider. 8 like all three, मतलब ये आ गया 8 के इक्वल. पहले आपने इसे फिल कर लिया एज 8 और अब जरा स्टार्ट कीजिए रिमेनिंग पार्ट फिर से यहां से. 14 लाइक ए एंड बी, तो आप चेक करिए यहां कितना आ जाएगा 6, क्योंकि ए एंड बी का टोटल सम 14 है. 8 ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ 6 आ जाएगा. नेक्स्ट कह रहे हैं 12 लाइक सी एंड ए. सी एंड ए ये वाला रीजन है, इसमें 12 है, 8 ऑलरेडी आ चुके हैं, 4 हो गया. नेक्स्ट 14 लाइक बी एंड सी. बी एंड सी इजीली विजुलाइज हो रहा है, ये वाला रीजन है, इसमें 14 तो ये 6 आ गया. जैसे ही ये आपके फिल हो गए, नाउ यू कैन चेक इट आउट. ए टोटल कितना था 21, तो आई वुड रिकमेंड आप यहां कम से कम चलो x, y एंड z लिख लो, सो दैट x प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 आ गया 21, y प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 26 आ गया, एंड c से आ गया z प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 is 29. What is x, y, z? X 3, Y 6, Z 11. एक बार सभी वेरीफाई कर लीजिए. x 3, y 6 and z आया 11. Means all the entries are filled जो मुझे चाहिए थी. Now I may go on asking lot many parts. जैसे क्वेश्चन में तो एक ही चीज पूछी है, how many like product C only. So what is the answer? 11. 11. 11. Yes, one can check it out. Only C का मतलब सिर्फ ये वाला रीजन हो जाएगा, C में से भी this one. So which is 11 as per this question. वो तो क्लियर आंसर आ चुका है. लेट मी एड फ्यू पार्ट्स. सोच के बताइए. फर्स्ट पार्ट, हाउ मैनी लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट. So X plus Y plus Z, which is equals to 20. वन ऑफ द प्रोडक्ट.
कुछ ना कुछ तो लाइक कर ही रहे हैं, डोंट यू थिंक सो? इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे, 3 प्लस 6 44. 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 11। थिंक लॉजिकली, कुछ ना कुछ तो लाइक कर ही रहे हैं ना, और आपस में मैंने इंटरसेक्शन भी नहीं लिया, तो ये जो जो नंबर्स लिखे गए थे आप इन सभी को ऐड कर देंगे, यू विल गेट जो पर्सन कुछ ना कुछ तो लाइक कर ही रहे हैं, राइट? हाउ मैनी लाइक एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट? Sir, 20. 20. वन प्रोडक्ट का मतलब दिस, दैट इज एक्चुअली x प्लस वाई प्लस जेड, और Only A, only B, only ऐड C. कर दें एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट्स, कितना हो 16. गया? 6 प्लस 4 प्लस 6, that is 16. What is, how many like none of the product? This is a challenging question. Sir, 0. Because we are not given total number of people. So Because not given 0 by- is incorrect. We cannot find that is the correct answer, because n of u जो है कि सर्वे कितने लोगों का किया गया था, चेक इट आउट, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इसीलिए दिस क्वेश्चन डाटा इज इनसफिशिएंट, तो देयरफॉर वी कांट फाइंड दिस। आर यू क्लियर? जिसने भी जीरो कहा था, Yes, sir. आंसर जीरो नहीं होगा, वी कांट फाइंड इट बिकॉज इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। Any doubt to anyone? Sorry. Check out this question. This is little bit tricky. पहले वेन डायग्राम बनाइए। $38 फुटबॉल, 15 बास्केटबॉल, 20 क्रिकेट। तो सबसे पहले तो नेमिंग भी मैं इंस्टेड ऑफ दिस ABC अकॉर्डिंगली बाहर ही लिखूंगा मैं। फुटबॉल 38, बास्केटबॉल 15 एंड क्रिकेट 20। सो एक कॉमन प्रैक्टिस से ये तो इजीली समझ आ जाता है। If these medals went to total of 58 men, इसका मतलब n of u total ये है, and only 3 men got medals in all the 3 sports. Only 3 men. इसका मतलब ये सेंटर वाला 3 हो गया। How many receive medal in exactly 2 of the 3 sports? तो चेक करिए, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू मी। जो अभी तक क्या हो रहा था, हम कम से कम इन वैल्यूज को फिल कर पा रहे थे, बट अब वो हमें गिवन नहीं है। सो हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, एक बेसिक सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, फिर आप सोचना शुरू कीजिए। लेट मी टेक से दिस एज ABC, और इसे आप ले लो X, Y एंड Z।
what we need to find actually? Yes, क्या निकालने को कहा है क्वेश्चन में? A, B, A, C. B, A C. plus B. A Yes. plus B plus C. A प्लस B प्लस C हमें एक्चुअल में निकालना है। स्टार्ट करिए। आपके पास 58 क्या है? इन सभी का सम। लॉजिकली सोचो क्या हो गया? x प्लस वाई प्लस जेड, फिर आ रहा था a प्लस बी प्लस सी, और एक वैल्यू थी सेंटर में 3, और ये गिवन है 58। which will give me x plus y plus z plus a plus b plus c as 55। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट, अब मैं देखता हूं ये 38, फुटबॉल के 38 दिए थे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस ए प्लस बी प्लस 3, दिस इज 38। आप चेक करिए, फुटबॉल जो 38 है वो ये वाला सर्कल है। इस सर्कल के अंदर जो भी वैल्यूज आ गई हैं उन सभी का सम 38 हो गया। तो आई हैव दिस एज माई नेक्स्ट इक्वेशन नंबर से 2। अगर फुटबॉल वाली इक्वेशन समझ आ गई है, नेक्स्ट 2 बहुत इजी हैं। बास्केटबॉल वाली क्या होगी? So we can't say x plus a plus b is equals to 35 and take ऑफ it कोर्स as our यस, ऑफ equation. कोर्स यस। हाँ, तो वही है। इसको इनफैक्ट ठीक है, वो हम यही लिख देते हैं। मैं इसे हाईलाइट और इसको सेकंड नहीं कहता। और हम ये तो ऑब्जर्वेशन था डायरेक्ट कि x प्लस ए प्लस बी आ गया 35। सेकंड इक्वेशन सिमिलरली फोकस करो यहाँ। तो क्या आ गया? y प्लस ए प्लस सी प्लस 3, 15 था। तो y प्लस ए प्लस सी आ गया 12। आई एम श्योर यू ऑल आर विद मी। समझ आ रहा है? Yes, sir. बाकी स्टूडेंट्स भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पता चले मुझे। मैं प्राइवेट कोचिंग नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, कि एक दो Yes, sir. स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स आए। ओके गुड। और फिर देखो, ये क्रिकेट की बात करते हैं। तो क्रिकेट वाले के लिए सम देखते हैं। 20 में क्या क्या इन्वॉल्व हुआ? z प्लस बी प्लस सी, z प्लस बी प्लस सी आ गया 17। सो अभी तक हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई हैं। सोचे जरा, अब हम इन इक्वेशन एंड नो अदर इंफॉर्मेशन इज नॉन टू मी। तो अब इन्हीं को We can add 2, 3 and 4. Yes, sir. We will add And to then subtract और x हम plus 2, y 3 और plus z. 4 को ऐड कर लेंगे। यस गुड। एडिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप चेक करिए, एक्स वाई जेड तो एक बार है, बट ए इज एडिंग ट्वाइस, बी इज एडिंग ट्वाइस, सेम सी इज एडिंग ट्वाइस। तो ये कितना आ गया? 35 प्लस 12 प्लस 17। कितना आ गया इन तीनों का सम? 64. 64। 64 ये सम आ गया। चेक करिए, मुझे a प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो व्हाट आई विल डू, मैं x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहां से एलिमिनेट कर लेता हूं लाइक दिस, और इसे कह दिया से इक्वेशन 5। फाइनली क्या करें?
using equation 5 in equation 1 आप x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रिप्लेस कर दो इससे, राइट। ये मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू भी लिखी है और बाद में ये एज इट इज, प्लस में ये पहले से ही था a प्लस बी प्लस सी एंड दैट इज 55 और माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी आ गया 64 में से 55 कर दिए माइनस सर माइनस 11, ये सर माइनस 9 9 आ रहे 11 आ रहा है नहीं 9 9 so a plus b plus c is 9 which is your required answer. So check it out, it's a question जहां algebra भी यूज हुआ है, Venn diagram उसका भी मैंने यूज किया है, but no formulas or set theory actually, क्योंकि वो इसे मुश्किल बना देते हैं. So keep it as simple as it is possible. राइट अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में मैं एक और पार्ट पूछ रहा हूं. हाउ मेनी, ये अभी हमने निकाला है एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स. हाउ मेनी लाइक ओनली 1 स्पोर्ट्स? सर x plus y plus z. x plus y plus z. That would be my x plus y plus z. बट हाँ, इस क्वेश्चन में अगर मैं ये कहूं हाउ मेनी लाइक ओनली प्लेइंग फुटबॉल, यू कांट आंसर. वो x होगा पर आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते गिवन इक्वेशंस की हेल्प से. डू रिमेंबर दैट. कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेपरेटली? No, sir. No, sir. No. So such type of questions are irrelevant in such situation. I hope the question is clear to all. Yes, sir. Chat box में अब जब मैं ऐसे आपसे पूछता हूँ, एक कॉमन बना लो आप ऐसे में कि चैट बॉक्स में सिर्फ y या n आ जाए, that's it sufficient. Is it clear? Y, if not clear, n. So that I will explain it again few important steps. But chat box में, and this way I mark your attendance also. Okay, ठीक है. अनीशा, जिया, किंशुक, रिया, मही, भारती, कुणाल, ओके, अर्चिता, राधिका, मृदुल, fine. So only 10 students are attending. बाकी कहाँ हैं ये बचे हुए? तो कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं क्लास में अपनी. ओके, एनीवे, ओके, ठीक है क्रिश. ओके, ठीक है. गुनिधि, राइट. Here is the question for your homework. और अब ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. The question consists of various 8 parts. For your reference, a diagram is given. I'll share this image with you all so that you can attempt this question. और जो कर लें वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे सिर्फ इमेज भेज देना इसके आंसर की. ग्रुप पे करेंगे तो वो कुछ और देख लेंगे, इसीलिए यहाँ अलग से आप मुझे सॉल्यूशन भेज सकते हैं. स्पेसिफिक आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 क्वेश्चन, राइट. So this is all about say today's class. In case if you have any doubt, you can ask. आप चेक कर लीजिए. अब इसके अलावा हमारा पेंडिंग क्या है जो मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने वाला हूँ. वेरी फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज. लाइकवाइज दिस 3rd एंड दिस 11th, these 2 आर थ्योरम्स की फॉर्म में है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हैं.
These two are very simple questions from miscellaneous using the formula. And in our next class, I'm going to play a quiz with you with these few questions जो मैंने अभी quickly दिखा दिए हैं MCQ form में. So I will be talking about that as well. Excuse me, sir. Yes. Sir, can I ask a doubt from assignment? Yeah, sure. Sir, can you please explain question number 4? Question number 4th. Yes, sir. I need to check that out क्या वो assignment मेरे सामने एकदम से open नहीं होती है ना. So you need to tell me the question. What is that question? So that question is find the pair of equal sets from the following sets, if any, give reasons. Okay, so उसमें तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कहाँ दिक्कत सर आई है? एक्चुअली मैं जब सॉल्व कर रहा था तो मेरा आंसर इन पांचों में से कोई भी सेट नहीं आता, लेकिन सर आंसर B-C था, तो वो मैं नहीं समझ पा रहा था. चलो ठीक है, वो मैं आफ्टर क्लास आई विल वेरीफाई. पॉसिबली हो सकता है कोई आंसर देने में गलती हुई हो. दैट इज अगेन पॉसिबल. So that I will check it out and confirm in a classroom. Okay.